morning, everyone. Welcome to BS Patna, a constituent unit of Patliputra University, Patna, organizing webinar come guest lecture 7 on topic COVID-19 and community psychology by Department of Psychology, Integral Quality Assurance Cell. And I'm really glad to present this webinar today, this present morning. And I'm very happy to see all of you as you all are attached with us, all the participants, those who are attached with us. I'm sure nowadays the kind of psychological issues we are facing. So I'm very sure that the webinar organized by BS College Danapur is really going to help you a lot. So now I would like to call our patron and principal of BS College Danapur, Professor Dr. Praveen Kumar, for his welcome speech. Professor Dr. Praveen Kumar sir, I welcome you with all warm heart to give us your gracious words so that we can start this webinar. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. हम अपने वेबिनार टीम को पहले बधाई देते हैं जिन्होंने एक वेबिनार की कतार खड़ी कर दी है। महाविद्यालय में एक अकादमिक कार्य की श्रृंखला खड़ी कर दी है। महाविद्यालय में गतिविधियों का अंबार लगा दिया है। जागृत और सक्रिय जो है अकादमिक कोविड काल में जो गतिविधियां सुस्त हो गई थी, ढीली पड़ गई थी, उसको अंजुम अशरफी साहब ने, आशुतोष जी ने और लोगों ने, उनकी टीम के मेंबरों ने मिलके इसको एक गति दी है, उसकी सक्रियता को बढ़ाई है। उसमें विवेकानंद जी भी हैं, हमारे आशुतोष जी भी हैं, अंजुम साहब भी हैं, बीना श्री भी हैं, राजेश जी भी हैं और महाविद्यालय के सभी कर्मी का अपेक्षित और जो सहयोग मिला है उसी के कारण महाविद्यालय इन कोविड काल में अपने अकादमिक एक्टिविटीज को सक्रिय रखे हुए है, जागृत रखे हुए है। इसके लिए हम टीम को बधाई देते हैं और हमारे जो सेमिनार के वक्ता हैं, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के विख्यात प्रोफेसर हैं, उनके भी हम ऋणी हैं। महाविद्यालय परिवार ऋणी है कि उन्होंने व्यस्त समय से कोविड काल में थोड़ा समय निकाला और महाविद्यालय के वेबिनार में अपना बहुमूल्य सुझाव, आलेख हम लोगों को देंगे, उससे हम लोगों को लाभान्वित करेंगे। हम उनके आभारी हैं, महाविद्यालय उनका आभारी रहेगा और है। और सब लोग जो जुटे हुए हैं, जो विद्यानुरागी हैं, विद्या प्रेमी हैं, सबको एक बार फिर बधाई और सबका हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने खूबसूरत शब्दों से आज के वेबिनार का आगाज किया है। और जो आज के प्रेजेंटर हैं, मैं वीना श्री हेम्ब्रम बता दूं कि ऑर्गेनाइजर हमारा जो बीएस कॉलेज दानापुर है, ये क्या है और क्या करती है, बिकॉज इतनी अच्छे काम ये कर रहे हैं अभी। और हम लोग एक सीरीज से वेबिनार चला रहे हैं। So I would like to tell you about the organizer, that is BS College Danapur. I'm sure the participants, those who are attached with us, would be very much fruitful. It will be very much fruitful for them to know about BS College. So the BS College Danapur is one of 4 subdivisions of Patna. Tributaries of Son River are like a necklace around Danapur and on its northern flank of Deara area. The entire Deara is prone to recurring floods. The majority populace of Deara belongs to BC, EBC, SC and minority community. So only education can bring about social and change and gender equality in the society. So Shri Bindeshwar Singh was visionary who realized it and donated 13.5 acres of prime land and worked relentlessly for the cause of education, and finally this college came into existence in 1954. BS College Danapur is a suburban institution situated
at a distance of 15 kilometers from Gandhi Maidan, Patna, and nearest railway station is Danapur, approximately 9-kilometer driving distance. And the college is easily approachable from Jayaprakash Narayan International Airport, which is at the distance of 11.2 kilometer via Digha Bridge Link Road. It became a constituent unit of Magad University, Bodh Gaya, in the year of 1975 after bifurcation of Magad University, Bodh Gaya. Patliputra University, Patna, was established on 18th March 2018 by the order of Government of Bihar. So BS College became part of Patliputra University that time only, and our aim is to provide quality education to students from a diverse background, irrespective of religion, region, caste, economic strata. And various academic and co-curricular activities have been restored and confidence of the surrounding community. So we wish to march in a progressive way to serve the society and the community. And I'm really glad to tell you, inform all of you, the participants, or those who have joined with us today, that we have our vocational courses also, and I'm glad to tell you all that our patron principal, Professor Dr. Praveen Kumar, worked really hard to bring up the vocational courses in this college, as that improves the psychology of all the students, those who are attached to us. So moving ahead, I would like to call Mrs. Vijaya Lakshmi, Dean, Faculty of Social Science, Patliputra University, and Head of PG Department Psychology, to inaugurate this webinar with her gracious words. Ma'am, you are most welcome to inaugurate this webinar. Welcome, ma'am. Mrs. Vijaya Lakshmi, ma'am. Mrs. Vijaya Lakshmi, ma'am, I would like to call you for your gracious words to inaugurate this webinar. Ma'am is Dean, Faculty of Social Science, Patliputra University, and Head of PG Department Psychology. Mrs. Vijaya Lakshmi, ma'am. Rajesh ji, is ma'am connected? नहीं मैम, नो मैम, Vijaya Lakshmi, ma'am is connected? नो मैम. Okay. So moving ahead then. So moving ahead, I would like to tell you that we have our two guest speakers today, two eminent distinguished guest speaker. So to introduce and talk about more about them, I would like to call Professor Dr. Vivekanand Singh, Head of Department Psychology, BS College, Danapur, to introduce our first speaker. He is Professor Ramji Lal, former professor and head Department of Applied Psychology, BBS, Purvanchal University, Jaunpur, UP. To know more about him. Yes, sir. मैम ज्वाइन कर ली. Okay, ma'am has joined. Okay, okay. Yeah. So just, ma'am, I would like to call you to inaugurate this webinar. So just grace us with your words. Ma'am Vijaya Lakshmi. She is Dean, Faculty of Social Science, Patliputra University, and Head of PG Department Psychology. Professor Vijaya Lakshmi, ma'am. Hello. Yes. A very good morning to Principal Sahab and a very good morning to one and all present here. It is my immense pleasure to inaugurate this webinar entitled COVID-19 and Community Psychology. First of all, I would like to take this opportunity to congratulate Professor Vivekanandji, Professor and Head, Department of Psychology, BS College, and his whole team to take a great pride to organize this webinar when we are all under the threat that opportunity spread of
community spread of COVID-19. The COVID-19. Hello, hello. Am I audible? Hello. Yes, ma'am, you are audible. Okay. COVID-19 has started in India. The COVID-19 pandemic is a major health crisis affecting almost all nations. Such wider spread outbreaks are showing its impact and adverse mental health conditions and have affected the quality of life. Community psychology is a branch of psychology that encourages the development of theory, research, and praxis relevant to the reciprocal relationship between the individuals and the social system that constitute the community context. Community psychology studies the individual context within communities and the wider society, and the relationship of the individual to communities and society. यानी community psychology समुदायों और व्यापक समाज के भीतर व्यक्तियों के संदर्भ एवं समुदाय और समाज के व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन करता है। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट समूह, संगठनों एवं संस्थानों तथा समुदाय एवं समाज के अंदर व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझना चाहते हैं। अभी के संदर्भ में खासकर इन सिंपल वर्ड्स द कम्युनिटी मीन्स सोसाइटी और द जनरल पब्लिक। Community psychology and also intersects with other branches of psychology as social psychology, others such as sociology and public health. A particular emphasis is on the social welfare and community mental health. How people think, feel and act, the way we perceive ourselves in relation to the rest of the world plays an important role in our choices, behaviors and beliefs. लोगों में इस कदर व्याप्त हो गया है कि कोविड का भय कि अब आप मोबाइल पर भी सुनते होंगे कि भेदभाव बीमारी से करें, बीमार से नहीं, क्योंकि डेली लाइफ में भी देखा जा रहा है कि लोग कोरोना आ रहा है और फिर उनसे लोग ठीक भी हो जा रहे हैं, लेकिन आम जनता जो है वो उनसे फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं, जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के लिए बेहद नुकसानदायक है। हम सभी अपनी विशेषताओं एवं एक दूसरे से भिन्न है, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ऐसे विकट परिस्थिति में कोविड-19 के दौरान हम भी समुदाय तथा वर्ग के लोगों के साथ मिलकर इस महामारी का सामना करना है और लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी प्रभावित हो गया है। लोगों में चिंता, अवसाद एवं अकेलापन काफी व्यापक रूप से पाया जा रहा है। शोधों में भी पाया गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक में महिलाएं ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। So there is need to raise awareness to protect our nature and look at various social, environmental and socio-psychological issues that are going day by day. The worldwide destruction caused by COVID-19 pandemic has resulted in numerous impacts on the daily life of general people. कोविड-19 महामारी के कारण समाज एवं समुदाय पूरी दुनिया में काफी बुरा समुदाय पर पूरी दुनिया में काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमें विजय के दृढ़ संकल्प के साथ जीना है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वेबिनार के सफल संचालन की मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम. Thank you so much for all your wonderful words. Now I would like to call upon Dr. Vivekanand, Professor Dr. Vivekanand Singh, HOD BS College Danapur, to introduce our speaker. Eminent speaker is Professor Ramji Lal, former Professor and Head Department of Applied Psychology, DBS Purvanchal University, Jaunpur. Professor Vivekanand sir, kindly introduce about our speaker. Unmute yourself, sir. Vivekanand sir, first you unmute yourself. Yes. Good morning to all of you. प्रोफेसर रामजी लाल मनोविज्ञान के एक परिचित नाम है. आपने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में लगभग 42 वर्षों तक मनोविज्ञान को सींचा है और उसे अपनी सेवाएं दी है. कम्युनिटी साइकोलॉजी में इनकी खास अभिरुचि है और अच्छी पकड़ है. कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन इंडिया के आप प्रधान सचिव हैं. शैक्षणिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में भी आप काफी सक्रिय रहे हैं. योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के सदस्य के रूप में भी आपने अपनी सेवा दी है. कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार तथा कॉन्फ्रेंसेस का इन्होंने सफलतापूर्वक आयोजन करवाया है. कई जर्नल्स के संपादक भी हैं जिसके माध्यम से मनोविज्ञान के नए नए शोधों को प्रकाशित कर उसका प्रसार करते हैं, जिससे अन्य शोधार्थी भी लाभान्वित हो रहे हैं. प्रोफेसर रामजी लाल जी, प्लीज ज्वाइन अस. Thank you, Professor Vivekanand Singh ji. I am audible. Hello. Yes, sir, you are audible. Thank you. Thank you very much. I would like to speak in Hindi if you people don't mind. Yes, sir, बिल्कुल. बहुत स्वागत सर आप. इस बीएस कॉलेज के यशस्वी प्राचार्य प्रवीण कुमार जी, भाई जय मंगल देव जी, प्रोफेसर विवेकानंद सिंह जी, प्रोफेसर विजय लक्ष्मी जी और सभी प्रतिभागी गण, भाई जयमंगल जी के द्वारा हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आपके बीच में एक अति महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बातचीत करने के लिए हम आपके सामने उपलब्ध हैं. प्रोफेसर विवेकानंद सिंह जी ने जब ये प्रस्ताव रखा तो उस समय मैं भी कुछ अति व्यस्तता की स्थिति में था, क्योंकि कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 10 जुलाई से और 12 अगस्त तक अल्टरनेट डे वर्चुअल लेक्चर सीरीज का आयोजन किया था, जिसमें कम्युनिटी साइकोलॉजी के विभिन्न पक्षों पर विभिन्न स्थानों के वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे थे. ये संयोग की बात है कि कल हम फर्स्ट फेज हमारा सब खत्म हुआ है. सेकंड फेज हमारा 16 अगस्त से शुरू होगा 25 अगस्त तक. इस बीच में जब इन्होंने 13 तारीख की डेट रखी तो मुझे लगा कि मैं अपने आप को इस कार्य के लिए उपलब्ध कराऊं और उनके कहने पर उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैं इसे अपना एक अवसर मानता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं इस पूरे कॉलेज का, पूरे प्रशासन तंत्र का, कि उन्हें मुझे यह एक अवसर
प्रदान किया। और जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि कोविड-19 यह एक महामारी के रूप में व्याप्त है और इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए इसने भयावहता को और बढ़ा दिया है। और भयावह स्थिति तो हम लोगों को देखने को मिल रही है, जो दूरदर्शन के माध्यम से जिस तरह के केसेस संक्रमित दिखाई पड़ रहे हैं, वो एक सचमुच भय पैदा करता है कि इस सृष्टि का क्या होगा, इस मनुष्यता का क्या होगा, जहां इतनी तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है। आज आप सब लोग इससे अवगत हैं, परिचित हैं। 2 करोड़ से ऊपर लोग पूरे विश्व में संक्रमित हो चुके हैं। अपने हिंदुस्तान की स्थिति पहले तो बहुत अच्छी थी, ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें भयावहता आती चली गई। और ये आपने पाएंगे कि आज लगभग 23.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। और भारत जैसा विकासशील देश जो हर तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है उसकी क्या स्थिति है और किस तरह से हम सामान्य रोगों के निदान और उपचार के लिए भी हम बहुत सक्षम नहीं अपने आप को पाते हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह की महामारी का आ जाना यह एक हमारे लिए बड़ी भारी चुनौती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में पहली सर्वप्रथम जानकारी दिसंबर 2019 में चीन से हुई। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, भारत के केरल राज्य में जनवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में कोरोना वायरस से पीड़ित पहला मामला प्रकाश में आया। 24 मार्च 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन का फैसला किया। तब से लेकर अब तक लॉकडाउन 4 बढ़ाने के साथ ही इसमें ढील देते हुए अनलॉक 1 लागू किया गया था, जबकि वर्तमान में अनलॉक 2 प्रक्रिया में है। ये अनलॉकडाउन की जो स्थिति हम देखते हैं कि ये लॉकडाउन का 68 दिनों तक के लंबा लॉकडाउन चला और चरणबद्ध तरीके से ये अनलॉक लागू हुआ। 30 जून 2020 तक लागू किया गया था, जिस चरण को अनलॉक 1 कहा गया। इस दौरान कंटेनमेंट क्षेत्रों को बाहर कई सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से खोला गया। फिर केंद्र सरकार ने अनलॉक के लिए 3 चरणों की योजना बनाई। पहला चरण 8 जून 2020 से 30 जून 2020 तक चला। दूसरा चरण 1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक। तीसरा चरण परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवाओं, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और आदि के खोलने की घोषणा की जाएगी। ये लॉकडाउन की स्थिति इस प्रकार से रही है कि प्रश्न खड़ा हुआ कि यह लॉकडाउन क्यों किया गया।
क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें बिल्कुल लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई, सड़कें सूनी हो गई, सारे यातायात बंद हो गए, पूरे बाजार बंद हो गए, बिजनेस प्रभावित होने लगा, लोगों को खाने पीने के सामानों की दिक्कतें होने लगी। लेकिन यह प्रश्न था कि हुआ क्यों? अब क्या इसको हम कुछ और दिनों तक ऐसे फ्री नहीं छोड़ सकते थे? लॉकडाउन करना प्रधानमंत्री की मजबूरी थी। मजबूरी यह थी कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा था इस महामारी का, तो हमारे पास जो सुविधाएं नहीं थी, हमारे पास न तो हॉस्पिटल्स थे, न कोरोना के जांच करने की सुविधाएं उपलब्ध थी। हमारे पास इस तरह की कोई सुविधाएं बिल्कुल कह लीजिए कि नहीं के बराबर थी। और लॉकडाउन जब किया गया तो यह मान करके कि कोरोना का चेन टूटेगा तो उसका संक्रमण कम होगा, और दूसरी तरफ इस बीच में हमको सुविधाओं को मुहैया करने का अवसर मिलेगा। इसलिए लॉकडाउन विभिन्न चरणों में लागू किया गया और उसका परिणाम हम लोगों ने देखा कि दिक्कत तो हुई, तकलीफ हुई हम लोगों को जरूर लॉकडाउन से, लेकिन ये हम लोग काफी हद तक सफल हो गए सुविधाओं को प्रदान करने में। और आज चाहे कोई भी प्रांत हो, हर स्थान पर टेस्टिंग की सुविधा बढ़ गई, हर स्थान पर आइसोलेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश हो गए, हर हॉस्पिटल्स में बेड की व्यवस्था बढ़ा दी गई, और इस प्रकार से हम इस संक्रमण का सामना करने के लिए साधन उपलब्ध करने में सफल सिद्ध हुए, समर्थ सिद्ध हुए। आप देखेंगे कोरोना की जो महामारी, यह एक वैश्विक महामारी है, और इस वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। आपको आश्चर्य होगा कि हम तो बहुत विकसित राष्ट्र हैं जहां हमारे पास साधनों की कमी है, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये रूस, ये ऐसे देश जो कि विकसित हैं और जहां की स्वास्थ्य सेवाएं अति उत्तम स्तर की थी, ये भी इस संक्रमण काल को या संक्रमित होने वाले व्यक्तियों को रोकने में उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त नहीं की। और जिस तेजी के साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा, वह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला था। और ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि आखिर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इतनी भारी संख्या में लोग कैसे संक्रमित हुए, और इतनी सुविधाओं के हेल्थ सिस्टम के सही होने के बाद भी यही हाल ब्रिटेन का रहा, यही हाल रूस का रहा, यही हाल इटली का रहा। तो इन देशों में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैला और उसने कई तरह के अपने प्रभाव छोड़े, और उसका प्रभाव हमको वैश्विक राजनीति पर भी देखने को मिला। इसमें चीन, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, अमेरिका, इटली या भारत, सभी देशों के शासनाध्यक्षों का मूल्यांकन देश या देश के बाहर इन्हीं आधारों पर हो रहा है। दुनिया की राजनीति जिसके केंद्र में जहां पहले मानवाधिकार, समानता, उपेक्षित समूहों के प्रश्न महत्वपूर्ण होते थे, वहां अब इस वायरस के विरुद्ध लड़ाई, इसके लिए संसाधन व इनका वितरण राजनीति के केंद्र में है। जो देश इस लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसकी राजनीति और राजनेताओं को
पूरी दुनिया में सम्मान मिलेगा। पूरी दुनिया में चिकित्सा की राजनीति व राजनीति की चिकित्सा का दौर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो विश्व स्वास्थ्य की सर्वोच्चवादी है, उसके इर्द गिर्द खड़ा हो रहा विवाद भी यही साबित करता है कि अब महामारी व संक्रमण के विमर्श को राजनीति में प्रतीकात्मक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपको मालूम होगा कि ट्रंप ने क्या आक्षेप लगाया कि यह जो चीन के वुहान से ये संक्रमण हुआ है कोरोना का, और चीन के प्रति उसका जो रवैया रहा वह अमेरिका का वह बड़ा विरोधात्मक रहा। यहाँ तक कि उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और उनको यहाँ तक कहना पड़ा कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देने वाली जो सहायता है उसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीन का पक्ष ले रहा है। और इस तरह से राजनीति प्रभावित होती रही और भारत में भी कुछ राजनीति हुई और इसमें प्रयास किया गया, उसको बारे में तमाम तरह के प्रश्न खड़ा किए गए। उसकी चर्चा करना यहाँ पर बहुत उचित नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस कोरोना की तकित ने हम लोगों को बड़ा प्रभावित किया। एक तरफ जहाँ राजनीति प्रभावित हुई, वहीं पर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी प्रभावित हो गई। केवल हमारे ही देश में ही नहीं, अमेरिका जैसा विकसित देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत रही है, उसकी अर्थव्यवस्था की चूलें भी हिल गईं। वह भी अपने अर्थव्यवस्था को लेकर के परेशान सा दिखा। और इस कोरोना जैसे वायरस ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव का संकेत दिया, और वो बदलाव इस प्रकार से हैं कि क्या होगा, कैसे अर्थव्यवस्था में बदलाव होगा। आप जानते हैं कि ये जो कोरोना का संक्रमण है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के स्पर्श मात्र कर देने से उसका संक्रमित हो जाएगा। तो एक जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव आने के लिए शुरू भी हो गया है कि रोबोट का उदय हुआ है, और रोबोट के माध्यम से तमाम क्रियाएं संचालित की जा रही हैं। जो रेस्टोरेंट खुले हैं वहाँ पर सर्विस का काम रोबोट के द्वारा हो रहा है। ऑफिसेज में भी रोबोट के द्वारा कार्य किया जा रहा है ताकि अर्थव्यवस्था को किसी तरह से बचाया जा सके। दूसरा जो सबसे बड़ी जो आशंका लगती है कि आगे चल करके क्या होगा इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे वह कोई भी देश हो, हिंदुस्तान से लेकर के और पाश्चात्य देश, हर देश में, हर रोजगार में, हर व्यवसाय में पुरुष और महिला समान रूप से भागीदारी कर रहे हैं। तो इसका सबसे खराब असर महिला कर्मियों पर पड़ने की संभावना ज़्यादा है। और असंगठित क्षेत्र में 53% महिलाएं काम करती हैं, और आप जानते हैं कि इस सेक्टर में सबसे अधिक लोग बेरोजगार हुए हैं। और हमारे विकासशील देश में तो 61% महिला कर्मी इस महामारी के चलते प्रभावित हो जाएंगी, हो चुकी हैं। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन हुआ और उस समय दिल्ली और मुंबई से, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों का जो पलायन हुआ, उसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थीं, और वो उनके रोजगार समाप्त हो गए और उसके नाते हुए अपने घरों के लिए निकल पड़े।
कैसे कैसे व्यवस्था हुई, इसको आप लोगों ने बड़ी बखूबी आपने देखा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो महिला कर्मी के प्रति जो हम लोग देख रहे हैं कि उनमें बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाने की संभावना ज्यादा है। इसी तरह से अमेरिका जैसा देश भी, उसमें बेरोजगारी की दर 10% कम हो गई है। ये 10% से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 31 मई को खत्म हुए सप्ताह में भारत में बेरोजगारी की दर 23.48% हो गई थी। इस तरह से विकासशील देश जो हैं वो हम लोग देख रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो विकासशील देश जो पीछे कहे जाते थे, अब धीरे धीरे वे महाशक्ति का रूप ले लेंगे। और एक ऑर्गेनाइजेशन सेवा फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट दिया है कि द वर्ल्ड इन 2050 के मुताबिक 30 वर्ष बाद विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 6 आज की उभरती अर्थव्यवस्थाएं होंगी। वियतनाम, फिलीपींस और नाइजीरिया जैसे विकासशील देश अगले 3 दशकों में लंबी छलांग लगाएंगे और भारत को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। तो विदेशी कंपनियां चीन से निकल करके भारत में आएंगी और आप देख रहे हैं कि विदेशी कंपनियां वहां से निकल रही हैं। उसके नाते जो चीन का जो स्वरूप है, चीन का जो व्यवहार है, इसको देखते हुए ये निश्चित रूप से यहाँ पर भारत के लिए एक सुनहला अवसर हम कह सकते हैं, जिसमें विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के अब अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया में भारत एक ऐसा बाजार है जो और कहीं नहीं है। चाइना भारत के साथ इस तरह का व्यापार क्यों करता रहा है? क्योंकि उसको भारत से अच्छी मार्केट नहीं मिलती है। और आज आप देखते हैं कि हमारे देश में इसके पहले चाइना के सारे आइटम्स छोटे से बड़े हमारे पूरे बाजार में व्याप्त हैं। आप चाहे वो देवी देवताओं की मूर्तियां हो, चाहे मोमबत्ती हो, चाहे झालरें हैं, या छोटी से छोटी जरूरत की सामान, सब चाइना बेस्ड यहाँ पर मिलती रही हैं। उसका कारण ये होता रहा है कि थोड़ा यहाँ से कम कीमत का होने के नाते लोग प्रीफर करते रहे हैं चाइनीज की। आज भी मोबाइल कंपनियां जो हैं, मोबाइल पर चाइना का ही एक अधिकार है। और चाइना ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित किया है। और जब से ये लद्दाख में ये विरोध चला है, तब से चाइना के प्रति भारत के लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। और लोगों ने तय किया है कि हम चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। और इस तरह से चाइना भी इस बात से परेशान है कि किस तरह से हमारी बाजार कम हो रही है। और दूसरे देश ये देख रहे हैं कि भारत में यह एक अवसर है कि जहां इन्वेस्टमेंट किया जाए और जहां पर भारत के बाजार को अपने साथ जोड़ा जाए और आर्थिक उन्नति के लिए। और यहाँ हम देखते हैं कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इस महामारी से प्रभावित हो रही है। और इस अर्थव्यवस्था ने
को दूर करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और ये हम सबका दायित्व भी है कि अगर अपने देश में अभी निर्णय लिया गया कि 101 कक्षा की वस्तुएं जो होंगी वो भारत में ही उत्पन्न की जाएंगी, उनका आयात नहीं किया जाएगा, तो यह एक इसको अच्छी चीज मानना चाहिए कि हम अपने जरूरत की चीजें अपने देश में पैदा करें ताकि हमारी अपनी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके। तो ये तो बात रही हम लोगों की वैश्विक अर्थव्यवस्था की और किस तरह से इसने राजनीति को प्रभावित किया। थोड़ा सा हम आपको प्रकाश डालना चाहेंगे इस बात पर कि किस तरह से क्या किया भारत ने इस महामारी को की रोकथाम के लिए। और प्रारंभ में आपको यह पता है कि हमारे पास कोविड-19 के परीक्षण की सुविधाएं नहीं थी और परीक्षण की सुविधाओं के न होने के नाते संख्या भी हम कम रिपोर्ट कर पाते थे और लोगों की जांच नहीं हो पाती थी। तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मई 2020 में यह जानकारी दी कि बहुत से देशों में कोविड-19 के सॉलिडारिटी ट्रायल के बाद मरीजों के उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को लंबे समय तक नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह का एकजुटता परीक्षण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया। नैदानिक परीक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल उसने किया और उसमें इस एकजुटता परीक्षण का उद्देश्य यही रहा है कि किस तरह से प्रभावी तरीके से हम टेस्टिंग करके इसका पता करें। और मुख्य रूप से 4 दवाओं का संयोजन किया गया, चिन्हित किया गया। ये थे रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रिटोनवीर, लोपिनेविर और लोपिनेविर या टिनेविर। ये कुछ दवाएं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब हमने टेस्टिंग हमारी बढ़ी, जब टेस्ट व्यापक होने लगे, प्रतिदिन हजारों की संख्या में जब टेस्ट होने लगे, तो उसका परिणाम हुआ कि कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। समस्या थी कि इसको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि जो हमारे अस्पताल थे वे सीमित थे, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे उनकी संख्या भी बहुत कम थी और ये जरूरी था कि जो अगर संक्रमित है तो उसको भी हमको मैनेज करना जरूरी था। इसके लिए आइसोलेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए और आपको पता होगा कि दिल्ली में जब यह संख्या बहुत बढ़ गई तो वहां पर ये जो स्टेडियम्स को बनाया गया वहाँ आइसोलेशन सेंटर, और उन आइसोलेशन सेंटर में उन मरीजों को रखा जाने लगा जो बिल्कुल को उसके एक्टिव जो पेशेंट्स थे उनको तो हॉस्पिटल में वो किया, लेकिन 14 दिन तक ये आइसोलेशन सेंटर में लोगों को रहना मजबूरी थी, क्योंकि यह अवधारणा थी कि कोरोना का जो वायरस है वह 14 दिन के अंदर वह अपने पूरे फुल फ्लेज ढंग से वह प्रकट होता है। इसलिए 14 दिन तक तो उसमें आइसोलेशन सेंटर में रहना जरूरी था। तो बहुत से आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत से होटल्स को कन्वर्ट किया गया आइसोलेशन सेंटर और कोविड हॉस्पिटल्स में। इवन जो बैंकेट हॉल थे उनको भी आइसोलेशन सेंटर और हॉस्पिटल्स में ये उनको किया गया। यहाँ तक कि जिस तरह से कोविड रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो रेलवे के विभाग ने वो अपने कोचेस को, जो कोच उसके थे एसी कोचेस खास तौर से थे, उनको
आइसोलेशन सेंटर के रूप में डेवलप करने के लिए उनको डेवलप किया। जो एसी कोच थे, 3 टायर कोच थे, उनके बीच की सीट को निकाल करके उसको आइसोलेशन एक को सारी सुविधाओं को लगा करके उनको वो बनाया गया आइसोलेशन सेंटर, ताकि उसमें अगर संख्या बढ़ने पर लोगों को उसमें शामिल किया जा सके। तो ये तो सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं की, कोरोना वायरस से जो संक्रमित लोग थे उनको कैसे आइसोलेशन सेंटर में रखा जाए, यह एक महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी। आप सभी से परिचित है, कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये चीजें थी। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कोरोना का कोई उपचार नहीं है, और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं निकल करके आती है तब तक तो कोरोना का कोई उपचार संभव नहीं दिखता है। अब वैक्सीन के बारे में भी राजनीति हो रही है, और आप जानते हैं कि हर देश वह वैक्सीन के लिए वो प्रयत्नशील है, और हर देश चाहता है कि हम पहले वैक्सीन का विकास कर लें, ताकि एक तो हम दुनिया में सबसे पहले हो जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि जो हमारा देश आगे होगा, हमारे देश के लोग ज्यादा लाभान्वित होंगे, और जब हम व्यापक पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो जाएगा। तो हर भी देश इस बात के लिए तैयार है, भारत भी इसके लिए प्रयत्नशील है, और अक्सर सुनने में आता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के भारत वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहा है। उसमें ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गए हैं, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द भारत में भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। ये जानकर थोड़ा सुकून मिलता है कि हो सकता है कि वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। अभी आपने देखा रूस ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हमने वैक्सीन बना लिया है, और उसका नाम भी उसने स्पुतनिक रख दिया। और आप जानते हैं कि इस वैक्सीन के इस डिक्लेरेशन को WHO ने भी स्वीकार नहीं किया, और चाइना तो बिल्कुल दुश्मन हो गया। चाइना तो ये उसका कहना था कि जैसे हमने अगर दिया है कोरोना को, तो वैक्सीन भी हम ही बना कर देंगे, और हम ही वैक्सीन को सारी दुनिया में प्रचारित करेंगे। तो इस तरह की कई ऐसी हर जगह की फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी थी, उसने ज्यादा प्रकट किया, और उसने एक दावा किया है कि उसने mRNA 1273 नामक वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इसी तरह से और भी अन्य देशों में ये वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है, और जो वैक्सीन बनाने की जो 5 प्रमुख तकनीकें वो यूज की जा रही हैं, उसमें एक निष्क्रिय वायरस वैक्सीन तकनीक, वायरल वेक्टर वैक्सीन तकनीक, DNA वैक्सीन तकनीक, RNA वैक्सीन तकनीक, प्रोटीन आधारित वैक्सीन, पुनः संयोजक वैक्सीन। तो इस तरह से ये तमाम तरह से वैक्सीन बना करके, और कोशिश किया जा रहा है कि ये इस संक्रमण को रोका जाए। भारत में भी ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड रोग की पुष्टि हेतु परीक्षण करने के संदर्भ में गोवा स्थित एक कंपनी द्वारा निर्मित ट्रूनॉट मशीनों के प्रयोग को कुछ सप्ताह पूर्व मंजूरी दी थी। इससे वैसे यह जो मशीन थी, इसे तपेदिक की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये इसका उपयोग इस कोरोना के लिए भी किए जाने का प्रयास किया। ट्रूनॉट जो परीक्षण प्रणाली है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम
कोरोना वायरस का हम परीक्षण कर सकें। और भारत ने जो और जो टेक्निक अपनाई है, एलिसा टेस्ट भी है। एलिसा टेस्ट तो किया जाता था ये इसके ये एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से RT-PCR एक टेक्निक है जिसके द्वारा कोरोना का परीक्षण किया जा रहा है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी एक टेस्ट का प्रणाली है जिसके द्वारा कोरोना की टेस्ट होती है। और इजराइल ने भी वो कोरोना के लिए एक सफल परीक्षण की बात वो कहता है। और एक हम लोगों को इस सारी महामारी की पूरी स्थिति में देखने को ये मिलता है कि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां जिसने बहुत जल्दी कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली। और न्यूजीलैंड में एक भी केस बहुत दिनों से नहीं आया है इसमें कोरोना का कोई केस। और वहां पर वो अभी रग्बी के टेस्ट खेल हुए थे, उसमें 43,000 लोगों ने ये वो किया, उसका उसमें खेल में भाग लिया। और न्यूजीलैंड ही एक ऐसा देश नजर आता है जो कि वह बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को कोरोना मुक्त करके वह कर रहा है। तो यह एक वैश्विक स्थिति है। और मैं एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते ये तो कुछ चीजें ऐसी हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में जिसके बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जानते भी होंगे। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कम्युनिटी साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में हमें कुछ बात करनी थी। तो हम तो जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में, जो उनका जो चाइल्ड मेंटल हेल्थ है, उसके चाइल्ड मेंटल हेल्थ को कैसे कोरोना प्रभावित कर रहा है इस पर हम बात करना चाहते थे। और पहला प्रभाव तो हम ये देख रहे हैं बच्चों के जब मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आप स्वयं देखें कि कोरोना के कारण सभी स्कूल कॉलेज बंद हो गए, चाहे वो छोटे बच्चों के स्कूल हों चाहे बड़े बच्चों के स्कूल हैं। अब उन स्कूलों उस बंदी ने कई तरह की समस्याओं को जन्म दिया है। एक तरफ उन विद्यालयों की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल चरमरा गई है वहाँ की व्यवस्था, क्योंकि उन्हें अभिभावकों से फीस न प्राप्त होने के नाते जो वहाँ के शिक्षक कर्मचारी उनमें भी उनको कोई वेतन न मिल पाने के नाते वे अलग संकट में थे। दूसरा संकट हुआ कि पढ़ाई का क्या हो। जो अप्रैल के महीने से कक्षाएं शुरू हो जाती थी, कोरोना के नाते वो बंद हो गई, पढ़ाई बंद हो गई। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि बच्चे स्कूल आएंगे नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। अब उसके बाद कुछ जो हम तो यही मानते हैं कि कुछ जो विकसित विद्यालय थे, जो सो कॉल्ड एलिट क्लास के विद्यालय हैं या कॉन्वेंट स्कूल्स के हैं, उन्होंने अपनी एक नई टेक्निक बनाई कि ठीक है हम सीधे तो नहीं पढ़ा सकते, क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हम उनकी ऑनलाइन उनको हम पढ़ाएंगे। और वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई उनकी। और अब मोबाइल पर वो क्लासेस लेने लगे। और वो भी उस मोबाइल पर जिसमें एंड्रॉयड हो, जिसमें कि बच्चों को वहाँ से क्लासेस शुरू होने लगी। तो एक वाया मीडिया तो अपनाया एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन देखने में तो लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में हमने कुछ सर्वे किया, कुछ अभिभावकों से बातचीत की, तो ये पता लगा कि ये जो ऑनलाइन पढ़ाई है वह उसने कई समस्याओं को भी जन्म दिया है। बच्चे को एक
साइकोलॉजी की मैडम थी, हमने उनसे पूछा कि आप हमारे प्रोग्राम को आप अटेंड क्यों नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि कैसे अटेंड करें, 4-4 घंटे तो हम अपने बच्चे को ये मोबाइल दे रहती हूँ, तो वो अपना वो होमवर्क वो करता, ऑनलाइन क्लास चलता है उसका, जब वो खाली होता है तब हम आपका लेक्चर में अटेंड करती हूँ। तो उनकी पीड़ा देखने में आई कि ये 4-4 घंटा बच्चा बैठ करके ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो वो उस पर कितना उसके मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ रहा है। उनमें एक उबन सी उत्पन्न हो रही है और उनमें अंदर उनके अंदर अवसाद जैसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, एक बोझ बनता जा रहा है। और ऑनलाइन का बहुत एंटी इफेक्ट भी बच्चों पर पड़ा है और बहुत से इस पर अध्ययन किए गए, हमारे यहाँ ही नहीं विदेशों में भी अध्ययन किए गए और उन्होंने ऐसा चौंकाने वाले परिणाम दिए कि इस कोरोना वायरस के कारण जो बच्चे जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं उनके अंदर अनेक मानसिक समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो रही हैं। और इसमें ये दिखाया गया, एक अध्ययन तो हुआ जिसमें पाया गया कि 51.6% लोग मानसिक समस्याओं से ग्रस्त पाए गए। उनमें से कुछ तो मानसिक रूप से गंभीर परेशानियों से पाए गए। 28% लोगों ने कहा कि वे मानसिक तनाव में हैं। तो ये तो कुछ जनरल उसके बारे में कोरोना के का क्या प्रभाव लोगों पर पड़ा, अभी हम उसकी बात थोड़ा कर लें। तो उसमें ये पाया गया कि लोगों में उत्साह की कमी है और उसके नाते कोरोना का एक प्रभाव यही है। और ये अभी एक उत्साह की कमी का मतलब वे मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो रहे हैं। लोगों ने ये बताया कि हमें खुशी की अनुभूति नहीं हो रही है, लग रहा है जैसे जीने में कुछ बचा ही नहीं है और अब जीवन ही व्यर्थ होता जा रहा है। यह भी अवसाद का एक लक्षण है। तो इस तरह की रिपोर्ट लोगों के द्वारा मिली। बहुत से लोगों ने ये कहा कि चूंकि लॉकडाउन में है, ये बार बार कहा जा रहा है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, तो घर से बाहर न निकलने से अकेलापन का एहसास महसूस होता है और अब अपने आप को बहुत लोग निसहाय समझने लगे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है ये कि या तो लोगों में बहुत अधिक नींद आ रही है या नींद ही नहीं आ रही है, और मानसिक समस्याओं की वजह से नींद की समस्याओं का होना यह एक आम बात है। ऊर्जा की कमी लोगों ने महसूस किया कि बहुत अधिक थकान होने से कारण, मानसिक अवसाद के कारण ये उनमें ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है। ऐसे ही लोगों को भूख की कमी महसूस हो रही थी। इस तरह से ये तमाम लोगों पर अध्ययन विदेशों में भी किया है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया, वहां पर भी कुछ इस तरह के परिणाम चौंकाने वाले मिले। लेकिन जो सबसे अधिक जो समस्याग्रस्त रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अभी कम्युनिटी साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव की बात हम करना चाह रहे थे। हमारे जी साइंस मैडम ने बहुत अच्छे ढंग से कम्युनिटी साइकोलॉजी के उद्देश्यों को भी प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि कम्युनिटी साइकोलॉजी का क्या रोल है और किस तरह से समुदाय के विकास के लिए कम्युनिटी साइकोलॉजी के सिद्धांत उपयोगी हैं। इस पर उन्होंने बहुत विस्तार में प्रकाश डाला। हम यहाँ पर यह तो स्पष्ट है कि कम्युनिटी साइकोलॉजी का जो मुख्य उद्देश्य है वह है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ जब इस तरह के महामारी से ग्रस्त लोग होंगे, इस तरह की मानसिक समस्याओं से लोग ग्रस्त होंगे, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कैसे होगी। आप हमेशा, आपको हम बताएं, हमने कुछ अध्ययन किए, कुछ लोगों से बातचीत किया,
खास तौर से ऐसे बुजुर्ग कह लीजिए या ऐसे लोग जो तरह तरह की गंभीर समस्याओं से ग्रस्त हैं, जो डायबिटीज हैं, जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, जो हार्ट प्रॉब्लम के हैं, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, ये हमेशा इस बात से भयभीत हैं कि कहीं वे इससे ग्रस्त न हो जाएं। इससे उनकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित हो रही है और इस कोरोना ने तो पूरे समुदाय की क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित कर दिया है और लोगों के सामने कोई विकल्प ही नहीं नजर आ रहा है। हमेशा भयग्रस्त होकर के वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कम्युनिटी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में एक ही बात हमको कहना था कि सारासन ने बहुत पहले साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ कम्युनिटी नाम की किताब लिखी थी कि कोई भी कम्युनिटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी बढ़ेगी जब उसमें कम्युनिटी का सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो। ये बात हम बहुत पहले से जानते हैं कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो कम्युनिटी में होना जरूरी है और ये बात हमारे पहले के समय में था। एक ग्रुप कोहेसिवनेस थी, गांव में भी एक संगठन था, एक सामुदायिक भावना थी, आपसी भाईचारा था। वो चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। तो इसीलिए कम्युनिटी रिजिलियंस खत्म होती गई है। लेकिन इस कोरोना के समय में ये जरूरी है कि कम्युनिटी रेजिलियंस बढ़े और बढ़ भी रहा है। जिस गांव में कोरोना के लोग पाए जा रहे हैं, 2 लोग भी अगर पाए जा रहे हैं, वह गांव हॉट स्पॉट घोषित हो जा रहा है। इसलिए गांव के लोगों में एकजुटता आ रही है कि इस गांव में कोई भी बाहर से आया है तो उसको वो तत्काल पुलिस को फोन करते हैं, बताते हैं कि नहीं ये आदमी बॉम्बे से आया है, ये आदमी विदेश से आया है और तत्काल उसे आइसोलेशन सेंटर में ले जाया जाता है। तो कुछ कम्युनिटी रिजिलियंस को बढ़ाना चाहिए, तभी जाकर के हम इससे बच सकते हैं। और फिलहाल जब तक वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती, और लगता है कि वैक्सीन के आने में भी बहुत समय लगेगा, 2021 के पहले तो नहीं लगता है कि वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी और वैक्सीन डेवलप भी हो जाएगी। तो हम लोगों के यहाँ गांव तक कैसे वह वैक्सीन कितनी जल्दी पहुंच पाएगी, इसमें भी बड़ा संदेह है। फिर भी हम लोगों को एक मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग बना करके चलना पड़ेगा और चल करके हमको इस कोरोना से लड़ने के लिए जो बनाए गए हैं कि आप मास्क का प्रयोग करें, आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम इतना तो हम करें ही ताकि अपने आप को हम बचा सकें। ये सबसे जरूरी है। अंत में मैं इस कोरोना काल की एक कविता के माध्यम से हम अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। आप अगर अच्छा लगे तो सुनेंगे। कोरोना काल के बारे में है। देखो कैसे सारी बातें को समाहित कर दे रहा है ये इस कविता। देखो कैसा है यह कोरोना काल, जो है सिर्फ इंसानों का ही बुना हुआ जाल, जिसमें हर तरफ खामोशी है छाई, दिल घबराने वाली घड़ी है आई, घरों से निकलना हुआ बेहाल, लॉकडाउन की ओर बढ़ चल संसार, मित्रों से मिलना सपना सब हुआ बंद, अब तो घरों में रहकर बस काम करो बेअंत। बालकनी में खड़े हो जी बहलाते हैं लोग, सोचते हैं कब बनेगा बाहर निकलने का संयोग। देखो कैसा है यह कोरोना काल, जो है सिर्फ इंसानों का ही बुना हुआ जाल, खत्म हुआ बच्चों बड़ों का पार गाना और त्योहारों ये पे मेहमानों का घर पर आना। अब तो फोन पर ही अपनों को बधाई दी जाती है, वीडियो कॉलिंग से अपनों की शक्ल दिख जाती है। इस समय यूट्यूब रस की लग गई है, लॉटरी है,
अमेजन, फ्लिपकार्ट यही सब पर भारी है। हर चेहरों पर अब तो मास्क दिखाई देता है, बिना मास्क का चेहरा अब हर आंखों में खटकता है। देखो कैसा है यह कोरोना काल, जो है सिर्फ इंसानों का ही बुना हुआ जाल। अब तो दुनिया की इकानमी का बच गया है बैंड, मिलकर सब कह रहे हैं कब होगा इस कोरोना का दी एंड। जो बच्चे कभी स्कूल न जाने को खोजते थे बहाने, वही अब स्कूल जाने के देखते हैं सपने सुहाने। ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन ने बढ़ा दिया है, एक मिनट कैसे कीजिएगा, कैसे कर लीजिए। जो बच्चे कभी स्कूल न जाने के खोजते थे, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से विभिन्न पहलुओं पे विचार किया। जी सर। जी सर, आपकी कविता अधूरी रह गई। हाँ, एक लाइन, हाँ थोड़ी थोड़ी सी 2-4 लाइन और रह गई हैं, उनको हम सुना देते हैं। बच्चों की बात है, जो बच्चे कभी स्कूल का न जाने के खोजते थे बहाने, वही अब स्कूल जाने के देखते हैं सपने सुहाने। ऑनलाइन एजुकेशन ने बढ़ा दिया है इनके चश्मे का नंबर, वही है कुछ कर गुजरने की तमन्ना। हर शिक्षक के अंदर हम भी बढ़ चले हैं लॉकडाउन 1 से अनलॉक 3 की ओर। राफेल NEP 2020 रामलला मंदिर पर काम किया है पुरजोर। देखो कैसा है कोरोना काल, जो है सिर्फ इंसानों का ही बुना हुआ जाल। यह कुछ नहीं बस चीनियों की करनी है, जिसकी भरपाई सारे विश्व को भरनी है। इतना करने पर भी जी नहीं भरता उनका, आक्रमण कर अपनी सीमा को बढ़ाने का चढ़ा है चस्का। राफेल लाकर बढ़ा दिया हमने भी अपना सैन्य बल, चीनियों के हमले का पलटवार करेंगे सभी भारतीय मिलकर। चीनी सामानों का बहिष्कार कर्तव्य है हर एक भारतीय का। स्वदेशी को अपनाना ही रहस्य है अपनी जीत का। कोरोना की वजह से चीन संपूर्ण विश्व को खटक रहा, अगर सुधरा नहीं यह तो इसका भविष्य ही हमें नहीं दिख रहा। ये कुछ बात लाइनें थी जो आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दी, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि यह संकट जल्द से जल्द समाप्त हो, हम सभी सामान्य स्थिति में आए, हम लोगों के कॉलेज खुले, स्कूल्स खुले, बच्चे पढ़ने जाएं, क्योंकि बच्चे अपने साथियों को वो मिस कर रहे हैं। बच्चे केवल पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, बच्चे जब जाते हैं तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी जो उनका इंटरेक्शन होता है वो उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बड़ा सहायक होता है। तो जल्दी ईश्वर करे कि वो दिन आए और हम सभी एक राहत की सांस लें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर प्रोफेसर विवेकानंद सिंह जी, जयमंगल देव जी की मैं उनको सराहना करता हूँ और उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ पूरे महाविद्यालय परिवार का कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया बात करने का। मैं नहीं जानता कि मैं अपनी बात कहाँ तक आपके समक्ष रख पाया हूँ, फिर भी जो कुछ भी जानकारी थी वो आपसे शेयर करने का अवसर मिला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बहुत रोचक जानकारियां दी। इट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव एंड very much helpful for all our participants to improve our psychological level and what are the causes and how can we manage our stress. So it was a wonderful informative session, sir. So now I would like to call our another distinguished guest and to introduce about him. Once again, I request Professor Dr. Vivekanand Singh.
HOD Psychology Department, to introduce about the other distinguished speaker, Professor Dr. Tarni Ji, President IPA. Dr. Vivekanand sir. प्रोफेसर तारनी जी, आप इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। शैक्षणिक कार्य के साथ साथ शोध कार्य में भी ये काफी सक्रिय रहे हैं। कई जर्नल्स के संपादक रहे। लगातार अंतराल पर ये कई सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन करते रहे हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस के 2012 के अधिवेशन में ये सेक्शनल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। प्रोफेसर तारनी जी, सर प्लीज। थैंक यू विवेका भाई। आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल। परम आदरणीय हेलो डॉक्टर, मैं भाई तारनी जी का स्वागत करना मैं भूल गया था। हमारे पुराने मित्र हैं, मैं उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं। तारनी जी का बहुत दिनों के बाद उन्हें देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। तारनी भाई। आदरणीय प्राचार्य प्रवीण कुमार जी, कॉलेज के डायनेमिक प्राचार्य, जिनके देखरेख में कॉलेज एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। जहां तक हमारी जानकारी है कि विंदेश्वर सिंह कॉलेज दानापुर का मनोविज्ञान विभाग बिहार में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में यहाँ के छात्र, यहाँ के फैकल्टी मेंबर कार्य किए हैं और वहाँ जाकर लोगों का मार्गदर्शन, गाइडेंस, काउंसलिंग का काम किए हैं। तो कहने का ये है कि बिहार का सबसे पुराना कॉलेज विंदेश्वर सिंह कॉलेज और यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर हुए हैं उनका योगदान, वहाँ के जो छात्र हैं उनका योगदान मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए मैं उन लोगों, सभी लोगों को नमन करता हूँ जो अभी यहाँ हैं या ऊपर चले गए हैं। मैं कॉलेज के जो सबसे पुराने टीचर जिनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध था, जान पहचान थी, आना जाना था, प्रोफेसर रामचंद्र मिश्रा मधुर कॉलेज के स्थापना काल से ही लगे हुए थे। कॉलेज को साथ साथ मनोविज्ञान विभाग को काफी ऊंचाई तक ले गए थे और उनके नाम से पूरा उस समय का मगध विश्वविद्यालय नाम से ही जानता था। इस तरह का कॉलेज दानापुर में अच्छे फैकल्टी मेंबर है। दूसरी बात, बाद के दिनों में यह पाया गया कि वहाँ के जितने फैकल्टी मेंबर हैं अधिकांशतः 80% से अब एम्स सिन्हा इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े रहे, जो कि अभी तक वहाँ मधु जी हैं और विजय बाबू हैं, सारे लोग एम्स सिन्हा इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। कहने का अर्थ ये कि वहाँ पठन पाठन का कार्य, शोध का कार्य और वहाँ का जो प्रशासन वगैरह का कार्य, वो हमारे टीचर चक्रदेव प्रसाद से वहाँ थे। उन्होंने भी विभाग को एक नई दिशा प्रदान की। सिंह सिन्हा जी थे, उन्होंने भी वहाँ का संभाला और इसी कार्यबल पे उन्हें बिहार का जो पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला उसमें उन्हें मौका मिला कि नहीं, आप अपने अनुभव का लाभ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार को भी दीजिए। तो उन्होंने बहुत दिनों तक, जब तक पटना में ये विश्वविद्यालय रहा, उस यूनिवर्सिटी को चलाया। इस तरह हम पाते हैं, हमें गर्व है कि आज हम उस कॉलेज से, उस मनोविज्ञान विभाग से जुड़े हुए हैं जिसका एक प्राचीन इतिहास रहा है, एक अपनी परंपरा रही है और एक उसका सम्मान रहा है। और उस कड़ी में आज हमें काफी गर्व हो रहा है कि हमारे अपने मित्र विवेका भाई वहाँ का लीड कर रहे हैं, वो लोगों को मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए अत्यंत ही गौरव की बात है। जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा, आज के मुख्य स्पीकर रामजी बाबू को लोग सुनने के लिए आए। मैं तो घर का आदमी हूँ, पटने का आदमी हूँ। सभी लोग हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, हमारी भावनाओं को भी जानते हैं।
हमारी कमियों को भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे रामजी भाई से हमारा जो नाता है वो पिछले 35 साल से है। हम लोग एक एक महीने एक साथ रखकर कई रिफ्रेशर कोर्स में भाग लिए हैं, और जहां हम लोग दिन रात कुछ न कुछ दिमाग लगाते रहते थे कि कैसे मनोविज्ञान का लाभ छात्रों तक जाए। और हमको याद है जहां तक कि कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना काल से ही हम उसमें जुड़े रहे। रामजी भाई के साथ हम बलिया में, रीवा में, बनारस में, यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर में भी एक प्रोग्राम आयोजित किए जिसकी काफी सराहना हुई। इस तरह से हम रामजी भाई से प्रारंभ ही मन कर हम 35 साल से जुड़े हुए हैं। इधर उनका कुछ कार्य बढ़ गया और हमारा कार्य थोड़ा सा भारत के जो सबसे बड़ी जो पुरानी जो संस्था है, हम जो सबसे बड़ी पुरानी संस्था में चले गए जो कि इंडियन साइंस कांग्रेस है, वहाँ हमारा काफी समय लगने लगा। और इसमें सिर्फ रामजी भाई एक बार दिल्ली में हमसे भेंट हुआ था, उसके बाद ये शायद वहाँ आना जाना इनका कम गया। लेकिन ये हम जो संस्था में जुड़ गए उसमें हमारा काफी समय देना पड़ा। इस वजह से कम्युनिटी साइकोलॉजी से हमारा थोड़ा सा दूरी हो गई है। लेकिन अभी भी हमको याद है कि कम्युनिटी साइकोलॉजी के विकास में हम लोग बराबर शुरू के काल में लगे रहे। अब दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा वो आज की परिस्थिति के बारे में। आज एक नई परिस्थिति आई है और प्रतिकूल परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति है। हम लोगों ने इन सब बातों को कभी सोचा भी नहीं होगा। हम लोग के मस्तिष्क में ये सब बात कभी नहीं है कि एक दिन ऐसा भी आएगा, अनएक्सपेक्टेड। आज उसी परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिस्थिति में भी सभी लोग अच्छा कर रहे हैं और अच्छे ढंग से एडजस्ट कर गए हैं। हमारा तो ये मानना है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कि भारत के ज्यादातर लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है और लोग विपरीत परिस्थितियों में घबराने वाले नहीं हैं। ये कुछ टीवी वाले, कुछ मीडिया वाले, कुछ हमारे भी स्पीकर भाई बंधु लोगों को भयभीत कर देते हैं। ऐसे हम उनकी सराहना करते हैं कि उनके भयभीत करने से हम लोग ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। तो अभी की स्थिति में कोई डरने वाली बात, कोई घबराने वाली बात, कोई चिंता वाली बात, किसी तरह की कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि हमें ये करना है कि जब तक हम नई परिस्थिति में, नए सिचुएशन में अपने पूरे को ढाल नहीं लेंगे, उसको अनुसार नहीं काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात मैं बता दूं, जहां तक मेरी जानकारी है अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था के बारे में सारी दुनिया रो रही है, लेकिन सारी दुनिया को ये पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। कई बार उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था में आए हैं, शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव कई बार आए हैं, लेकिन यहाँ का उसके आम जीवन पर, आम जनता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। थोड़ा पड़ता है लेकिन उसको हम लोग बहुत आसानी से धीरे धीरे उसको दूर कर लेते हैं। यह है भारत के लोगों की अपनी एक विशेषता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था के बारे में दिन रात हमें रोना नहीं रोना है, हमें ये देखना है कि अर्थव्यवस्था को कैसे हम सुदृढ़ करें। तो अभी बहुत अच्छी बात है, हमें अपने अनाप शनाप जो खर्च हैं उन खर्चों को कम करना है, उनसे थोड़ा दूर रहना है, सादा जीवन बिताना है, सिंपल लाइफ रखना है, लेकिन अपने आप को क्रिएटिव काम में, अच्छे काम में इंगेज भी रखना है। जब तक हम अपने आप को अच्छे काम में इंगेज नहीं रखेंगे, अपने इमोशन को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तब तक इस लड़ाई को लड़ने में काफी कठिनाई होगी। ये सारी चीजें हमारे बस की है कि हम इस परिस्थिति में 2-3 चीजों से परहेज करें। आलोचना से, किसी की निंदा से, किसी की शिकायत से। इस परिस्थिति में
हमें उनसे दूर रहने में ज्यादा फायदा है। दूसरी बात है अच्छी अच्छी विचार, अच्छी अच्छी भावनाएं हमें आना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छे हेल्थ का अर्थ यह है कि हमें अपने खान पान पर उचित ध्यान देना है, ज्यादा भी नहीं। तो कैसे हम अपने को स्वस्थ रख पाए, इसके लिए जो बैलेंस डाइट है, समय पे भोजन है, इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, समय पे सुविधा के अनुसार लेना है, जिससे कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो बना रहे। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। यहाँ के बच्चे हैं वो लोग सारी परिस्थिति को समझ रहे हैं, कभी जो परिस्थिति है वो किसी के बस में नहीं है। कोरोना के बारे में ये कब तक है, कब जाएगा, कोई भी आदमी कहने की स्थिति में नहीं है। अभी जो है विशेष परिस्थिति है, अभी विशेष नियम बन रहा है। परिज बुजुर्ग के नाम लिखा रहे हैं, नाम लिखा चुके हैं, उनको हम लोग पास कर दे रहे हैं। विशेष परिस्थिति है। तो अभी के समय में वो पुरानी बातों को हम लोग ध्यान दें कि नहीं पहले ऐसे होता था, ऐसे करते थे, वो सब संभव नहीं है। अभी क्या है, विशेष परिस्थिति में विशेष नियम वो सारे जगह लागू करने पड़ेंगे हमें, हर जगह। चाहे वो एडमिशन की बात हो, चाहे वो परीक्षा की बात हो, चाहे वो अन्य कार्य हो। अभी बिहार में युवा वर्ग में जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं वे लोग काफी प्रसन्न हैं कि बिहार में अच्छी वैकेंसी हो रही है, अच्छी बहालियां हो जाएंगी, जिसमें कि उनको एक अवसर मिलेगा। इस अवसर के लिए भी ये सारे लोग लगे हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये अपने भविष्य के लिए ये कोरोना काल में शारीरिक डिस्टेंस को बनाते हुए, दूरी को बनाते हुए ये अपना कार्य जो करते हैं ऑनलाइन के द्वारा, सारे कार्य ऑनलाइन के द्वारा किए जाएंगे। इस तरह की हम बात पाते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि फिजिकल डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंस नहीं रखना है। सभी लोगों से हमें मिलजुल कर, भाईचारा बनाकर, उनको इनकरेज करके रहना है। अभी हमारे पास लगातार जो छात्र स्कूली शिक्षा पास किए हैं, एडमिशन के लिए कहाँ एडमिशन लें, कैसे एडमिशन लें, क्या हो रहा है, ये सारे लोग ऑनलाइन राय ले रहे हैं। और जहाँ तक हो पाता है मैं उनको नॉट एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, एज ए फ्रेंड, मैं उन लोगों को जहाँ तक हो पाता है अपने सलाह से उनके करीब जाकर, उनका आत्मीय बनकर उनको हम प्रोत्साहित करने का मार्ग करते हैं, जिससे कि इस तरह काम हो रहा है। तो अभी की परिस्थिति में एकदम बदली हुई परिस्थिति है और ये परिस्थिति कब तक रहेगी कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बात ये सही है कि कोई चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज का एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है। महामारी भी पहली बार नहीं आई है, महामारी पहले भी आई हुई है, जिसमें लोगों का कहना है कि करोड़ों करोड़ लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी पृथ्वी है, लोग हैं, सारी बातें हैं। तो इसलिए परिस्थिति जो भी हो ये अधिक दिन तक रहने वाली नहीं है। ये परिस्थिति बदलेगी, नया दिन आएगा, नया सवेरा आएगा और हम लोग फिर नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ फिर जो पुरानी स्थिति है, पुराने समय वाली बात है, उन स्थितियों को ला पाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारी बातें जो आप लोगों को बताया गया, राम जी भाई ने बता दिया है, उन बातों को हमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एक दो बात जो और हम बताना चाहते थे कि ये जो हमारे यहाँ इंटरनेट से लोग ज्यादा समय दे रहे हैं, इंटरनेट में ज्यादा समय किसी को भी नहीं देना है। ये हम लोग के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। और हम समझते हैं इस बात को, यहाँ के लोग ज्यादा समझते हैं कि वो लोग इस सबसे इंटरनेट से हिसाब से ही जुड़े रहते हैं और ज्यादा उस पर ये लोग नजदीक में रहते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि कोई चीज का एक सीमा होना चाहिए, सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो बुद्ध का संदेश है मध्यम मार्ग, जब तक हम बुद्ध के संदेश को नहीं लाएंगे, ज्यादा भी हम च्यवनप्राश खाने लेंगे, ज्यादा गुस्सा करने लेंगे, तो उससे काम नहीं चले। सब कुछ की एक सीमा है कि नहीं, आप एक चम्मच लीजिए, सावधानी से रहिए,
निश्चिंत रहिए। तो इस तरह से हमें जो इंटरनेट है, बहुत से लोगों का भी सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, बता भी रहे हैं कि हम 200 वेबिनार अटेंड कर लिए, चोरी से कर लिए, बिहारी जुगाड़ से कर लिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन सब बातों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत से ज्यादा वेबिनार में समय देने की, भाग लेने की भी जरूरत नहीं है। जहां आपके मन लायक हो, जहां आपके टॉपिक के लायक हो, जहां आपको मन लग रहा है, उसमें जाना चाहिए। सभी वेबिनार में सभी लोगों का उपस्थित रहना वो समय की पुकार नहीं है। तो बहुत तरह की बातें हैं जिसमें हम लोग काफी उसके लिए समझदार हैं। उन सब बातों को पालन करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम पुनः आपको इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की ओर से सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बातें और बहुत ही सधे शब्दों में जिस तरह से एक मानसिक विचार होना चाहिए वो आपने व्यक्त किया और बहुत ही लाभदायक सेशन रहा ये। और अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो वीना जी जी सर। जी सर। हमारे साथ प्रोफेसर जयमंगल देव जी भी हैं। जी सर। तो अगर जयमंगल सर कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और जी जी बहुत शुक्रिया। उनका सुनना हमेशा ही सुखद रहा है, लाभप्रद रहा है। मैं थोड़ा चाहूंगा कि आज फिर मैं उनसे थोड़ा सुन लूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर जयमंगल सर का। आप उनके बारे में थोड़ा बता दें विवेका सर। ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अभी शिक्षण से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ये रिसर्च एक्टिविटी से भी जुड़े हुए रहे हैं। प्रोफेसर जयमंगल सर जी, बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर जयमंगल सर आपका आज के इस वेबिनार में, और बेहद खुशी की बात है। और थैंक यू विवेका सर, आपने उनके बारे में बताया और सच में बहुत ही सुखद होगा उनका सुनना, उनके बारे में जानना। और तो संक्षिप्त में जो भी आप आज के विषय पर अपनी राय रखना चाहेंगे प्रोफेसर जयमंगल सर, वी वेलकम यू सर। थैंक यू मैडम बीना श्री। थैंक यू सर। आप सबों का, आज के आयोजन से जुड़े सभी साथियों का, सभी वरिष्ठ जनों का, सभी मित्रों का, सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन और आभार। मैं एक साधारण प्रतिभागी के रूप में आपसे जुड़ा हुआ हूं जब से यह आज का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, और मुझे लगता है आज अवसर मेरे बोलने का नहीं है, इसलिए आप सबों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप कृपया कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जो प्रश्नोत्तर का सत्र है, फिर कभी दूसरे दिन किसी दूसरे मंच पर अवसर मिला तो मैं अपनी बात जरूर रखना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हालांकि बहुत सारे प्रतिभागी भी आपको सुनना चाहते थे और बिल्कुल बीएस कॉलेज अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और उम्मीद है कि हम जल्द ही आपको पूरी तरह से सुन पाएंगे। और बहुत धन्यवाद विवेका सर, आपने उनके बारे में मेंशन किया। तो अब आगे बढ़ते हुए प्रतिभागियों के कुछ प्रश्न हैं और मैं बहुत सारे प्रश्न तो नहीं ले पाऊंगी। few questions we will be taking it, and there is one question from Durgesh Kumar, and I would like to ask these questions from Professor Ramji Lal. Professor Ramji Lal, are you connected, sir? Professor Ramji Lal, are you connected, sir? If you can hear me, then you can unmute yourself. The question is not clear, madam. Yes, sir. I'm just putting up the question. Yes, sir. I'm putting up the question. The question is, everyone is experiencing. Yes, sir. I'm repeating the question. Everyone is experiencing with depression and anxiety. Human lifestyles affected due to political, social, and economical reasons. So the question is, as psychology point of very sorry to say that due to sound problem, the question is not clear. Either you write down on the this box
so that I may know the question. Sir, the Madam, question is due to written, sound already written. Madam Beena Shri, disturbance, Madam Beena Shri, Yes, sir. would you mind if I answer this question for the benefit of the Yes, sir. due to Definitely, sound definitely. disturbance, I could not hear the question. Please tell me. Definitely, sir. I'll just reading out the question. Any one of you can answer it. The question is from Durgesh Kumar. Everyone is experiencing with depression and anxiety. Human lifestyle affected due to political, social, and economical reason, or too much conscious awareness about COVID-19 pandemic. So, as psychology point of view, all of the above reason, media is responsible or not for this mental health crisis? The question is, for all this pandemic, It's clear. It's audible. I'm waiting for Dr. Ramji Lal's answer, or maybe after him, I would like to add my points. okay, so the question is, as Kindly put psychological the point question. of view, it is already written in the box, sir. It is already written on the box. So, sir, let me begin. Binashri madam. yes, sir. Yes, sure, sir. Most welcome. तब तक रामजी लाल सर बॉक्स में देखते रहें, देखें. जी सर, आप जरूर आप. सवाल बड़ा सीधा सा है कि आज जो प्रतिबल और अवसाद की अवस्था से गुजर रहा है लोकमानस, हमारा समाज, इसके लिए मीडिया में जिस तरह की खबरें, जिस तरह की रपटें आ रही हैं, वो कितना उत्तरदायी या जिम्मेवारी उसकी बनती है, यही प्रश्न है ना? जी सर, सेम क्वेश्चन राजेश कुमार मिश्रा सर ने भी रिपीट किया था, सिमिलर. ये सवाल मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले, वो इनबॉक्स में, चैट बॉक्स में आया है. जी सर, स्वागत. इसका उत्तर, इसका संक्षिप्त उत्तर है हाँ, मतलब मीडिया जो है वो इसके लिए उत्तरदायी है, जिम्मेवार है. मीडिया रिपोर्टिंग जिस तरह की चल रही है वो रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन थोड़ा विस्तार में अगर जाने की आप मुझको अनुमति दें तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शुरू में ऐसा ही था. शुरू में इस पैंडेमिक के बारे में और इसके जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव थे उसको लेकर मीडिया में नकारात्मक ही रपटें, नकारात्मक ही खबरें ज्यादा आई कि इतने लोग जो हैं वो अवसाद में चले गए हैं, इतने लोगों को नींद नहीं आ रही है, इतने लोग जो हैं वो उनको घबराहट हो रही है, इतने लोग जो हैं वो तमाम कारणों से, क्योंकि किसी की नौकरी चली गई, किसी को स्वास्थ्य संबंधी चिंता है, किसी को रोजगार की चिंता है, किसी को घर बार की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है. तो कई सारे कारणों से ये ऐसा हुआ कि लोग जो हैं प्रभावित हुए, उनकी मनोभावनाएं और उनकी मनस्थिति जो है वो प्रभावित हुई. अब लेकिन स्थितियां बदली हैं, खास करके जिस तरह से लॉकडाउन का लंबा दौर चला, तो इस बीच में ऐसी भी खबरें आई कि लोगों ने कई सारी नए कौशल विकसित किए, लोगों ने कुछ ऐसे काम किए जो वो कई वर्षों से, लंबे समय से करना चाहते थे और कर नहीं पाते थे. ऐसी किताबें पढ़ी. और हमारे ही शहर में एक पूर्व प्रशासक ने, जो आजकल धर्माचार्य के रूप में भी प्रतिष्ठित स्थापित हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा फाइनल कर दी इस लॉकडाउन में. तो ऐसी खबरें भी आई हैं, लेकिन मोटे तौर पर संक्षेप में मैं कहूं तो मीडिया की जिम्मेवारी से इनकार नहीं किया जा सकता. धन्यवाद. जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयदेव सर. बहुत ही खूबसूरती से आपने इस प्रश्न का जवाब दिया है कि मीडिया किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है. और अब मैं आग्रह करना चाहती हूँ, अगर तानी सर सुन रहे हैं तो तानी सर, आर यू देयर? जी सर, एक और सवाल आया है सौम्या सिंह की तरफ से. हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ इमोशनल हेल्थ ड्यूरिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक? Tarni sir, are you there? Okay, if Tani sir is not there, Ramji sir is there. Ramji sir, can you see this question?
How can I take care of emotional health during coronavirus pandemic? So I request the eminent guest speakers, the questions are been put up in the chat box. So if you can go through. Tarni sir, Ramji sir, are you available? Yes, Please ask. Ramji sir. Yes, Ramji sir. The question is, Yes, sir. yes, please repeat. How can I take care of emotional health during the coronavirus pandemic? Okay. Madam, the most important aspect in this coronavirus is the emotional well-being is adversely affected. As I told in my discourse, कि हर आदमी आशंकित है, अवसादग्रस्त है, भयभीत है, तो हमारे इमोशनल वेलबींग को तो प्रभावित कर रहा है, लेकिन हमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, एक दूसरे से अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो रही है तो मोबाइल के माध्यम से भी एक दूसरे को का कुशल क्षेम लेना पड़ेगा, उनको ढांढस बंधाना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनल वेलबींग के लिए और कोई रास्ता बचता नहीं है। आप अपने आप को किसी अच्छे काम में लगाने का प्रयास करें, कोशिश करें कि आप ऐसे काम में लगे जो नया हो, जो आपको सुख पहुंचाने वाला हो, इस तरह का कुछ काम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबसे बैडली अफेक्टेड हमारा इमोशनल वेलबींग है और बहुत भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का अगर हम लोग सही ढंग से पालन करें तो भयभीत होने की होगी, इसमें से ही हमारा इमोशनल वेलबींग प्रभावित हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो जी sir, the similar question was from Kumar Sudhanshu. I think it has been answered. One more question I would like to take up from Anamika Bhardwaj. She is asking, what is the way to guide and help the society as per the student of psychology, or what should be the role as a scholar like us? Please repeat. Please repeat the question. What is the way to guide and help the society as per the student of psychology, or what should be role as a scholar like us? Question is not very clear. I am मैडम वो पूछ रही है कि सर वो रोल क्या होगा एज अ स्कॉलर ऑफ साइकोलॉजी स्टूडेंट या एज अ स्कॉलर, उनका रोल क्या होगा और क्या हेल्प वो सोसाइटी के लिए कर सकते हैं? व्हाट आर द वे टू गाइड एंड हेल्प द सोसाइटी? Yeah, that's good. See, the role of students of psychology is to create awareness among the people. In the schools, they should create awareness through their different programs, the ill effects of फोन दीजिए तो अपना फोन। corona, and now they should console them. They console them that corona is over and they should start their normal activities. They should take part in some other activities as usually they are doing it, and they should not very much. So the
role of psychology students is to sensitize the people, to create the awareness among the students as well as in the community about the coronavirus. Unless and until there will be chaos, there will be fear, and they have to remove that fear with their psychological strategies. Thank you. Thank you so much, sir. It was really very enlightening, and I'm sure all the participants are very much getting benefit, and they are benefited. And I think if Tani sir is there, then the last question I would like to ask from Tani sir. Tani sir, are you there? Okay, if he's not there, then Let us have the question, please. yes, sir. The question is there any chance to establish a counseling center in each university and college as took initiative during pandemic situation? Is there any chance to establish a counseling center in each university and college? Okay, got it. There is one more question lying there in the chat box. I think we should also take that up. And Yes, it is about the career opportunities for psychologists. I hope you have seen it by now. Okay, I'll just go through it. Okay. So as for the career counseling center, there is already a directive from the UGC that every college must have a counseling cell, a student counseling cell. It's an altogether different matter that not many colleges, or for that matter even universities in our country, are taking it up in a really useful or meaningful way. But I think now these counseling centers have become very much imperative for our educational institutions. That answers the question that you just put up to me. Now for the other question that I hinted, shall I go try to answer it? Dinashri ma'am, which is the question about. Yes, sir. Carry on, please. Carry on. Yes, the question about career opportunities. See, career opportunities का तो ऐसा है कि overnight every teacher of psychology, irrespective of his or her specialization or area of work or area of interest, has turned into a clinical counseling psychologist. But that's on a lighter note. Seriously speaking, मुझे ऐसा लगता है कि इस कोरोना काल में यह जो महामारी का समय है, इस पर विजय हम पा लेंगे। उसके बाद भी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति एक जो जागरूकता और संवेदनशीलता आई है लोगों में, हमारे समाज में, इसके चलते मानसिक स्वास्थ्य कर्मी जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी मांग बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली है हमारे देश में भी। और एक बिल्कुल ही नया क्षेत्र, नया तो नहीं लेकिन बहुत कम प्रचलित क्षेत्र है जिसमें कि बहुत ज्यादा संभावना मैं देख रहा हूँ, वह है टेले मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मेंटल काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसमें एक जबरदस्त उछाल आने वाला है आने वाले समय में, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद जी, बिल्कुल सही और बहुत ही अच्छी सलाह एंड गाइडेंस आपने दी। और बिल्कुल अभी सभी लोग जिस तरह से मानसिक चीजों से गुजर रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। जी सर, राम जी। हेलो जी सर। हेलो, हाँ मैडम, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अभी आपने काउंसलिंग सेंटर की बात की है, मैं ये बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग का जो प्रोफेशन है वो काफ़ी फ्लरिशिंग है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी लागू की गई है और हमारे यूपी में जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स पे अब मैं ये जानता हूँ कि हमारे यहाँ से अप्लाइड साइकोलॉजी का कोर्स करके क्लिनिकल
साइकोलॉजी में एमफिल करके आज लगभग बहुत से बच्चे जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में अपॉइंटेड हैं। तो वह एक एरिया है जहां पर कि क्योंकि काउंसलर्स के लिए मैंडेटरी हो गया है, जो सेंट्रल स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में काउंसलर की नियुक्ति करना उनको जरूरी हो गया है। आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड को भी करना है। तो वह एक एरिया ऐसी है जिसमें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और आप उसके लिए कुछ फर्दर कोर्सेज करें और आप निश्चित रूप से एज काउंसलर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा था, अभी जय मंगल देव जी ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना जरूरी है। इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि हमारे कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन ने हर जगहों पर, अपने यूपी में तो हमने कई जगहों पर इस्टेब्लिश किया है, कम्युनिटी सेंटर्स हमने इस्टेब्लिश किया है। और उस कम्युनिटी काउंसलिंग सेंटर का जो विजन है वह है सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस क्रिएशन ऑन कम्युनिटी इश्यूज। तो उसमें कोई बहुत आपको जागरूकता फैलाने के लिए कुछ अभियान चलाने होंगे, मेंटल इलनेस के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता पैदा हो, या और भी सेंसिटिव इश्यूज हैं उन पर जागरूकता पैदा करने के लिए लोग। पर्पज सिर्फ यह है कि मनोविज्ञान को विभागों से हट करके बाहर जा करके कम्युनिटी में जाकर कुछ सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस क्रिएशन का काम करें ताकि मनोविज्ञान की उपयोगिता भी सिद्ध हो सके। तो इस तरह से काउंसलिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि बहुत जगह कोर्सेज भी लागू किए गए हैं जिनको करके आप विभिन्न विद्यालयों में एज काउंसलर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, दिस वाज टू से। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और चूंकि समय अब हो चुका है, अभी ईशानी मैम ने भी कुछ प्रश्न दिया है। मैं आग्रह करूंगी हमारे जितने भी स्पीकर्स आज जुड़े हैं, कृपया आप पढ़ करके अगर आपको समय मिले तो कृपया आप लोग इसको चैट बॉक्स में आंसर कर देंगे। और चूंकि अभी समय हो रहा है तो बहुत सारे प्रश्न मैं नहीं ले पाऊंगी, मैं क्षमा चाहती हूँ इस बात के लिए। और एक देयर इज वन इंफॉर्मेशन दैट फीडबैक लिंक इज बीन गिवन, so I request all the participants kindly fill up your feedback form. Hello. Yes, I request all the participants kindly fill up your feedback form. And now I would like to call, to present vote of thanks, I would like to call Professor Dr. Rajni Kumari Mishra from Department of Psychology, BS College, Danapur, because they were wonderful guests who spoke a lot about today's topic. So now I would request Dr. Professor Rajni Kumari Mishra to present vote of thanks. Rajni ma'am. गुड आफ्टरनून। बीना, मेरा वीडियो आ रहा है? गुड आफ्टरनून मैम, ऑडियो है, आप वीडियो को क्लिक कर लें। ठीक है, ऑडियो तो वीडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो जा रहा है? यस मैम, क्लियर। हाँ ठीक है, तो मैं शुरू करूं? जी जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। It is my great privilege to propose my gratitude and thanks to all of you. I, on the behalf of BS College, Danapur, extend my heartiest gratitude to Professor Vijaya Lakshmi Ma'am, Dean in the Faculty of Social Sciences and also HOD in Postgraduate Department of Psychology in Patliputra University. Ma'am, thank you for your inaugural speech and coordinating this session so well. Thank you, ma'am. Then I would like to thank our respected principal, sir, Dr. Praveen Kumar, for taking efforts to make this national level webinar possible. Thank you, sir, for your effort and support. I would also like to thank our distinguished guest speaker, Sir Professor Ramji Lal,
Department of Applied Psychology, Purvanchal University, UP. Your ideas are very informative and useful, sir. The present scene of COVID-19 and community psychology, you have given a very warm and informative lecture. Sir, with help of psychologists, social problems can be solved, sir. Thank you, sir. Then I would like to express my gratitude to Professor Tarni, sir, President IPA, for his insightful vision and excellent presentation. I must mention our deep sense of appreciation for your kind words, sir. Then I would also like to thank and express my gratitude to Professor Jayamangal, sir, Department of Psychology, College of Commerce, for your quick summary and question answer session, sir. Lastly, I would like to thank all of my colleagues like Professor Anjum sir, Professor Vivekanand, Professor Dr. Asutosh sir, and all staff members and students. Lastly, this webinar on community psychology gave us insight into our future and showed ways to solve problems. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, Veena. Am I audible?